تو ملک بھر میں آج یوم عاشورہ بڑے ہی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ملک کے الگ الگ حصوں میں، ملک کے الگ الگ ریاستوں میں آج کس طرح سے روایتی طریقے سے یوم عاشورہ منایا جا رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ مختلف شہروں سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ جڑے ہوئی ہیں۔ یو پی کے میرٹھ سے ہمارے نمائندے تنزیر انصار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ حیدرآباد سے انیس الرحمان ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ راست طور پر جڑے ہوئے ہیں، اور لکھنؤ سے طارق قمر ایک بار پھر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ میں سب سے پہلے حیدرآباد کا رخ کروں گا۔ حیدرآباد میں انیس الرحمان، میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کہ تلنگانہ ہائی کورٹ کی بات کریں تو یہاں پر ہائی کورٹ کی طرف سے اجازت ملی ہے کہ بہت لمیٹڈ، کم لوگوں میں 10 سے 15 لوگ جلوس نکال سکتے ہیں۔ کیا کچھ منظر آج دیکھنے میں آ رہا ہے؟ کیونکہ یوم عاشورہ کی ہم بات کریں تو چار مینار اور پتھر گٹی کا جو یہ پورا علاقہ ہوتا تھا، پورا ایک طرح سے پٹا رہتا تھا، بہت زیادہ بھیڑ رہتی تھی یوم عاشورہ پر۔ اس بار ماحول کیا کچھ ہے انیس؟ دیکھیے ابو، جہاں تک حیدرآباد کے محرم کی بات ہے، یہ ہندوستان میں لکھنؤ کے بعد سب سے مشہور یہاں پر جو ہے محرم کا سماں ہوتا ہے۔ پورا حیدرآباد، پرانا شہر حیدرآباد ایک طرف سے یکم محرم سے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم تک یہاں پر جو ہے مجالس ہوتی ہیں۔ پوری بڑی اہتمام کے ساتھ یہاں پر یوم عاشورہ تک مختلف جو ہے یہاں پر پروگرامز منعقد ہوتے ہیں، لیکن اس بار یوم عاشورہ کا جلوس جو ہے یہاں پر قدرے مختلف ہے۔ یہاں پر جو تاریخی علم ہے، بی بی کا علم، اس کے ساتھ ایک مرکزی جلوس ہوا کرتا تھا۔ 400 سال سے بھی زائد کی یہ روایت ہے۔ حیدرآباد ہی نہیں، تلنگانہ کے مختلف اضلاع سے، بلکہ کرناٹکا اور مہاراشٹر سے بھی بلا تفریق مذہب و ملت لوگ یہاں آتے تھے اور علم کا دیدار کرتے تھے، ٹھپیاں چڑھاتے تھے، منتیں مانگتے تھے۔ لیکن اس بار تھوڑا مختلف ہے، لوگ ابھی بھی دیدار کر سکتے ہیں لیکن گھٹی نہیں چڑھا سکتے۔ کل شام کمشنر آف پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے ایک میٹنگ منعقد کی۔ شیعہ علماء اور لیڈرز وہاں پر گئے۔ ان لوگوں نے بات کی، تیقن دیا کہ جو بھی رولز اور ریگولیشنز ہے، جو بھی عدالت نے طے کیا ہے، اسی کے مطابق یہاں پر محرم کا جلوس ہوگا۔ اس طرح کی اجازت دی گئی ہے کہ جو بی بی کا علم ہے، تاریخی بی بی کا علم، اسے ایک 4 ویلر پر نکالا جائے۔ تو یہ طے کیا گیا ہے کہ ایک ڈی سی ایم پر یہ علم، بی بی کا جو علم ہے، وہاں سے جو اس کا عاشور خانہ ہے، وہاں سے آگے ہوں گی، آگے بڑھیں گی، چار مینار سے ہوتے ہوئے جو روایتی اس کا راستہ ہے، ختم رسول، اور پھر پرانی حویلی کا دروازہ ہے، اور اس کے علاوہ دارالشفا ہے، اور آگے جو بڑھتا ہوا جائے گا، اور علم اس طرح کھنڈے کیے جائیں گے۔ تو ابھی یہ معلوم ہوا ہے کہ علم نکلنے کی تیاری ہو چکی ہے۔ علم ٹھیک 1 بجے بی بی کے علاوے سے جو ہے آگے نکلے گا، اور شہر کے مختلف مقامات سے ہوتا ہوا جو ہے شام تک وہ آگے بڑھتا ہے۔ تنزیر انصار، میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا، کیا کچھ ماحول اس بار ہے؟ کیونکہ انتظامیہ کی طرف سے کافی پابندیاں ہیں، اس کے بعد جو عقیدت مند ہیں، جو مومنین ہیں، ان میں کس طرح کا جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا ہے؟ جی بالکل ابو، میں بتاؤں گا مغربی اتر پردیش میں، چاہے میرٹھ کی بات ہو، مظفر نگر کی بات ہو، ان علاقوں میں کثیر تعداد میں جو عزاداران حسین تھے، عزاداران شہدائے کربلا تھے، امام بارگاہیں، قدیمی امام بارگاہیں ہیں۔ میرٹھ کی ہم بات کریں تو یہاں منصبیہ عربی کالج میں سب سے بڑی کربلا جو ہے وہ منصبیہ عربی کالج میں ہے۔ چھوٹی کربلا منصبیہ ہے، پنجتنی امام بارگاہ ہے، عبداللہ پور کی امام بارگاہ ہے، جہاں پر قدیمی جلوس نکالے جاتے تھے، عشرہ مجالس کا انعقاد کیا جاتا تھا، اور جو مخصوص تاریخیں ہوتی تھیں ان میں زری اور تابوت نکلتے تھے، زلجنہ کا جلوس نکلتا تھا، علم نکلتا تھا، جو تاریخیں ہوتی تھیں۔ لیکن اس بار جلوس اور تعزیہ یہ نہیں نکلا ہے۔ امام بارگاہوں میں بھی تالے رہے ہیں، جہاں پر مجالسیں منعقد کی گئی ہیں وہاں پر بھی 5 لوگوں نے جو ہے وہ مجالس کی ہے، اور زیادہ تر آن لائن لوگوں نے اپنے گھروں میں تقریر سنی ہے۔ جو خطیب اہل بیت ہیں، انہوں نے مختلف مقامات پہ جہاں پہ وہ موجود ہیں وہیں سے ہی آن لائن جو ہے مجلس کو خطاب کیا، اور لوگوں نے اپنے گھروں میں مجالس جو ہے وہ سماعت کی ہے۔ تو اس طرح سے، لیکن
आशूरे के रोज़ जो है वो ताबूत निकलते थे, जो जिन घरों में ताज़िए रखे जाते हैं वो अपने घरों से ताज़िया बढ़ाते हैं आज के दिन, और करबला में दफन किए जाते हैं वो ताज़िया। इस वक्त हम जिस करबला में मौजूद हैं, मनसबिया अरबी कॉलेज की, ये सबसे बड़ी करबला है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि चंद अफराद ही हैं जो आमाल आशूरा होता है वो करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और करबला में हालांकि करबला का दरवाज़ा खुला हुआ है कि ज़ियारत के लिए जो चंद अफराद एक एक दो दो करके आ रहे हैं वो ज़ियारत करें, क्योंकि आज के दिन आशूरे के रोज़ जो है शब आशूर से ही जो इमाम बारगाहें हैं उनको खोला जाता है, बंद नहीं रखा जाता। तो लेकिन एहतियात के साथ ये है कि वहाँ पर भीड़ जमा ना हो, और लोग इस चीज़ को खुद भी फॉलो कर रहे हैं। इस तरफ मेरे बाईं तरफ अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये करबला का वो इलाका है जहाँ पर इस हिस्से में यहाँ पर गढ़े हैं और यहाँ पर ताज़िए दफन किए जाते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई सरगर्मी नहीं है। सुबह से ही यहाँ पर पिछले सालों में जिस तरह का माहौल रहता था कि यहाँ पर लोग कसीर तादाद में जमा होने लगते थे सुबह से ही, और सुबह 7 बजे से ही आमाल शुरू हो जाते थे। मुख्तलिफ सफ़ों में लोग आमाल करते थे, जो उलेमा होते थे, आलिम दीन होते थे, वो आमाल कराते थे। लेकिन इस बार आमाल लोग कर रहे हैं क्योंकि वो अहम है, जो है एक जुज़ है इबादत का। तो यहाँ पर आकर आमाल आशूरा कर रहे हैं लोग, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है, वो सफ़ों में हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं और अंदर कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं बाहर आपको जो है उस तरह से भीड़ नज़र नहीं आएगी करबला में। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंतज़ामिया है उसने भी एहतियात के तौर पर इन मकामात पर जो है पुलिस डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है अज़ादाराने हुसैन आ रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन यहाँ पर पुलिस फोर्सेस भी जो हैं वो भी मौजूद हैं और उनको भी तैनात किया गया है। जो मकामी थाने हैं इस इलाके के, रेलवे रोड थाना है, वहाँ से बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए। मैं तारिक उमर आपके पास आना चाहूंगा। तारिक, 10 बजे हमने लखनऊ की तस्वीरें देखी थी कि बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि आज आशूरा का दिन है और इतना अहम दिन है, और खासतौर से लखनऊ की अगर हम बात करें। तारिक, इस वक्त लखनऊ के हालात क्या कुछ है, और लखनऊ के अलावा जो लखनऊ के आसपास के इलाके या जो अजला हैं वहां से किस तरह की खबरें मिल रही हैं? देखिए हुरैरा, आपने दिखाया था वो मंजरनामा जब मैं बड़े इमाम बाड़े के गेट पर मौजूद था, आपने देखा कि किस अंदाज से सन्नाटे का वहाँ पर राज था। इस वक्त मैं विक्टोरिया स्ट्रीट पर खड़ा हूँ, शिया कॉलेज के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ हूँ। ये वो इलाका है, आपकी नज़रों ने इसका मुशाहिदा किया है, आप नाज़रीन को दिखाते रहें कि ये वो इलाका है जहाँ यौम आशूरा को लाखों लोग मातम करते हुए करबला का रुख करते हैं, अलम उठाए जाते हैं, ताज़िए रखे जाते हैं, जंजीरी मातम होता है, नोहा खानी होती है, मरसिया खानी होती है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि एक ऐसा दिन तारीख ने दिखाया है जब आज़ादार अपने घरों में कहीं ना कहीं मुक़य्यद हो गए हैं एक कोरोना वायरस के सबब। उलमाए किराम ने अपीलें की हैं, उलमाए किराम ने दरख्वास्तें की हैं कि लोग अपने घरों में रहें, ताज़िए न निकाले जाएँ। ज़ाहिर है कि बहुत खूबसूरत कदम है, एक तहफ़्फ़ुज़ाती कदम है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों में रंजो गम का इजहार भी किया है। चूँकि देखिए लखनऊ एक तारीख़ी शहर है, आज़ादारी के एतबार से मरकज़ आज़ादारी कहा जाता रहा है इसे, तो ये वो इलाका है, ये वो स्ट्रीट है जहाँ पर लाखों लोग इस वक्त निकलते थे जंजीरी मातम करते हुए, नोहाखानी करते हुए। लेकिन मैं देखता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं कि देखिए ये वो सड़क है, दूर तक देखते जाइए आपका एक सन्नाटा है, जो हमें लगता है कि जैसे कर्फ्यू का माहौल हो। सिर्फ पुलिस के अहलकार गश्त कर रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां गश्त कर रही हैं, पुलिस के जो अहलकार हैं वो बाकायदा तौर पर पूरे हालात का जायज़ा ले रहे हैं। देखिए इस वक्त मेरे साथ मौलाना अली हुसैन कुम्मी हैं, जो इत्तफाक से एक इमाम बारगाह जाते हुए मुझे रास्ते में मिल गए हैं। कुम्मी साहब, ये मंजर जो तारीख दिखा रही है ये बड़ा इबरतनाक भी कह सकते हैं, इसे अफसोसनाक भी कह सकते हैं, और दूसरे भी इसके कई हवाले हो सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे लखनऊ के ताल्लुक से? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदुस्तान की बका है और हिंदुस्तान को लोग पहचानते हैं तो वो आज़ादारी से पहचानते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम जो है सारे हिंदुस्तान के मुसलमान ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग, हर मज़हब के लोग हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अक़ीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। यौम आशूरा तमाम मज़हब के लोग जो हैं वो ताज़िया अपने घरों में रखते हैं, मुहर्रम मनाते हैं, गम मनाते हैं। हम जहाँ पे खड़े हुए हैं यहाँ पे लाखों की तादाद में हर मज़हब व मिल्लत के लोग जो हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का गम मनाते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि
मैं समझता हूँ कि सन 61 हिजरी का दौर आ गया, यूँ कहा जाए कि यजीदियों का दौर आ गया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताज़िए उठाने पर पाबंदी की जा रही है, जबकि सारे काम हो रहे हैं। बहुत अहम रुख है। देखिए आप देखेंगे उरेरा कि ये पुलिस की जो गाड़ियां गश्त कर रही हैं, देखिए एक कैमरा मैं घुमा रहा हूँ, ये देखिए आपके मुसलसल ये वो शाहराह है जहाँ पर लाखों लोग हमेशा अलम लेकर निकलते थे, जंजीरी मातम करते हुए निकलते थे, लेकिन आज का मंजरनामा आप देख सकते हैं कि किस कदर तब्दील हुआ है और इस मंजरनामे के हवाले से बहुत सी वजाहतें की जा सकती हैं। हमारे साथ एक सहाफ़ी भी मिल गए हैं, इत्तफाक से हमें कादमी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? यकीनन आज जिस तरीके से दिल बड़ा पुरमलाल है, लेकिन कुछ वजूहात हैं और वजूहात के साथ में ख़ास तौर से लीडरशिप को बहुत ज़्यादा इस बात में अहम करूँगा कि लीडरशिप अगर चाहती तो इस बात को बहुत पहले से आया कर सकती थी, और किस तरीके से आपस में की तज़ात ने इस चीज़ को यहाँ इस मरहले तक छोड़ा। जाहिर सी बात है कि कोर्ट के बारे में कोई बहुत ज़्यादा उस पर हम कोई बात नहीं कर सकते, यकीनन हम अदलिया पे पूरी तरीके से भरोसा भी करते हैं, लेकिन आज का जो माहौल है इसमें कोविड का तो जितना दखल है ही, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि इससे ज़्यादा सरकार की अपनी जो चीज़ें थी उसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसको भी पूरे लोगों के सामने खौफ और इन्हिसार की चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। देखिए उरेरा, एक बुनियादी बात जो सामने आ रही है, हमने लखनऊ के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, लेकिन अकीदतमंद जो हैं बाकायदा तौर पर वो यही कहते हैं कि हम हुसैन के अकीदतमंद हैं, हम कबीला सब्र से हमारा ताल्लुक़ है और हम हिंदुस्तान की अदलिया पर मुकम्मल यकीन और एतमाद रखते हैं, लिहाजा जो कुछ भी अहकामात अदालत ने हमें दिए हैं उसकी पासदारी हम करेंगे। जो कुछ भी अपीलें उलमाए किराम की जानिब से की जा रही हैं उनका मुकम्मल तौर पर पास किया जाएगा। कुल्मी साहब, बहुत अहम मरहला है हिंदुस्तान की अदलिया के, लोग फॉलो कर रहे हैं। तारिक, हम दोबारा से लौट कर आएंगे, अगर ये मेहमान आपके साथ तो रोके रहे, क्योंकि मुझे बहुत छोटे से ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से लौट कर आएंगे और यौम आशूरा पर जो हमारी नशियात हैं लगातार जारी रहेंगी। मुख्तलिफ शहरों से जो नुमाइंदे वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। ऐन है ये अर्श एहतिशाम है, नबी का नूर ऐन है, ये क़िबला अनाम है, हुसैन है इमाम है, इमाम है हुसैन है। या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन। ये शाह मशरक़ैन है, ये अर्श एहतिशाम है, नबी का नूर ऐन है, ये क़िबला अनाम है, हुसैन है इमाम है, इमाम है हुसैन है। या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन। तो आज पूरे मुल्क में यौम आशूरा पूरी अकीदतों और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू लगातार मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ रियासतों तक अपने नाजरीन तक ये नशियात पहुँचा रहा है, क्योंकि अक्सर रियासतों में और तमाम बड़े शहरों में एक तरह से पाबंदियाँ हैं आशूरा के मजालिस और जुलूस पर। किस तरह से मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ रियासतों में इसका एहतमाम किया जा रहा है, लगातार हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त कोलकाता से हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं शबाना, बहुत मुख्तसर में कोलकाता में क्या कुछ माहौल है, क्योंकि मगरबी बंगाल में भी हमने देखा सरकार ने पाबंदी लगा रखी है जुलूस पर, इस वक्त माहौल क्या कुछ है? देखिए, हम बेलिया घाटा में मौजूद हैं, कोलकाता के बेलिया घाटा में। यहाँ करबला है और दूर दराज से लोग यहाँ आ रहे हैं क्योंकि जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी गई है। मजालिस का एहतमाम किया गया है, घरों में मुहर्रम के मजालिस का इनकाद किया गया है और आज आशूरा के दिन लोग इस करबला मैदान में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह भीड़ है और साथ ही साथ किस तरह पुलिस की चौकसी है, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ लोग आ रहे हैं। अलग अलग जमात के अलग अलग ग्रुप में लोग यहाँ पर आ रहे हैं करबला मैदान में। यहाँ किसी जुलूस के साथ आने की इजाज़त नहीं है। यही वजह है कि सिर्फ वैन के ज़रिया और एक छोटी छोटी गाड़ियों के ज़रिया जो है सिर्फ 10-15 लोगों को ही मुख्तलिफ इलाकों के, मुख्तलिफ इमाम बाड़ों के, मुख्तलिफ मजालिस में जो लोग शरीक हुए हैं और आज जो उनका जो है आशूरा का दिन है, आप देखें कि किस तरह गमों से निढाल हैं लोग और करबला के इस मैदान में आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से एहतमाम के साथ कोलकाता में खासकर जिस तरह से हम आशूरा के दिन मुहर्रम के जुलूस देखते हैं, आज बिल्कुल सन्नाटा रहा। हालांकि इलाके में मुख्तलिफ जगहों पर जहां से जुलूस निकलती है लोगों की काफ़ी भीड़ थी, लेकिन उन्हें जुलूस जो है वो देखने को नहीं मिली। बहुत सारे अकीदतमंद थे जिनकी मिन्नतें होती हैं, वो भी इंतज़ार में खड़े थे, लेकिन उन्हें मायूस लौटना पड़ा।
और लोग जो है वो जुलूस नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन करबला के मैदान में बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले में इस साल कोरोना की वजह से और इंतजामिया की सख्ती की वजह से बिल्कुल हालात बदले हुए हैं। मैं अनीसुर रहमान आपके पास आना चाहूंगा बहुत मुख्तसर में। अनीस, आपने बताया कि हैदराबाद के तारीखी बीबी के अलम का जो जुलूस है वो निकलेगा, बहुत लिमिटेड और महदूद तरीके से निकलेगा, लेकिन अनीस मेरा सवाल यह कि जो लोग जियारत करने के लिए लाखों की तादाद में आते थे, सड़कों के इर्द गिर्द खड़े होते थे, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? मुकाबले में यहाँ पर एक चीज ये दी गई है कि यहाँ पर जो यहाँ पर आसुर खाने हैं वहाँ पर लोग आ सकते हैं और मातम कर सकते हैं। मातम पर कोई पाबंदी आयद नहीं है, तो लोग आ रहे हैं और मातम कर रहे हैं। जो आपने कहा कि लाखों के लोग आते थे, तो कोरोना की वजह से यहाँ पर आज थोड़ा जो है लोग कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी वक्त है, लोग आएंगे और लोगों से यही कहा गया है कि वो सड़क के दोनों जारी खड़े रहें और बीबी का जो अलम होता है, तारीखी अलम, उसका दीदार करें। और जो भी रिवायती स्टॉप्स हैं, जब अलम जहाँ से निकलता है ओसीडी में, तो जो जहाँ भी वो जो चार स्टॉप दिए गए हैं वहाँ पर आसिर खानों पर अलम रुकेगा। वहाँ पर रिवाज के मुताबिक वो अलम जो है आसिर खाना के अंदर जाएगा, फिर बाहर भी आएगा। वहाँ पर लोग दीदार कर सकते हैं और उसके अलावा सड़क के दोनों जारी खड़े होकर भी दीदार कर सकते हैं। तंजीर, बहुत मुख्तसर में मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि बाहर जुलूस की शक्ल में तो नहीं निकल सकते हैं, यूपी में खासतौर से अगर हम बात करें, लेकिन घरों में किस तरह से एहतमाम किया जा रहा है आज यौम आशूरा का? जी बिल्कुल, घरों में अशराए मजालिस का पूरा एहतमाम किया गया, जो सिलसिले की मजालिस हैं उनका पूरा एहतमाम किया गया है। और ख़ास तौर पर आज आशूरे के रोज़ भी लोग, क्योंकि ताज़िया दफन नहीं हुआ है लेकिन मजालिस हुई हैं, शुरू से ही मजालिस का एहतमाम किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ अंजुमन के जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं, तालिब जैदी साहब। किस तरह से आज आप लोगों ने जो है वो खराज अक़ीदत मौला अब्बास को, मौला हुसैन को नजराना अक़ीदत ये पेश की है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज आशूर का दिन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के अंदर जो अजीम कुर्बानी पेश की वो सारी दुनिया जानती है। उसको कोविड-19 की वजह से आज हम लोग बड़े ममनून और गमज़दा हैं, लेकिन मजबूर हैं क्योंकि हमारे जो लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनई साहब, आयतुल्लाह सिस्तानी साहब, उन्होंने हमें सख्ती से कहा है कि जिस मुल्क में भी आप रहते हो अपने मुल्क के हुकूमत के रूल्स को फॉलो करो। इसलिए हम उनकी मातहत हैं और हमने बड़ी सादगी के साथ में आज गम अपने दिलों के अंदर रखा है। हम कोई इजहार नहीं कर रहे और बड़ी मुख्तसर तादाद के अंदर हम लोग 4-5 लोग आए और हमने यहाँ अमाल आशूरा की है और उसके बाद में हम अपने अपने घरों पर चले जाएंगे और इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया है। फाका शिकनी का क्या एहतमाम घरों पे और किस तरह से? भाई सभी लोग अपने अपने घरों पे कर रहे हैं फाका शिकनी इंतजाम, क्योंकि पहले हम लोग यहीं कराते थे, सब लोग अपना अपना तबरुक लाते थे, यहीं इमाम यहाँ करबला के अंदर कराते थे। लेकिन अब क्योंकि पॉसिबल नहीं है तो उसी हिसाब से सब लोग अपने अपने घरों पर ही लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों पे मौला को पुरसा दे रहे हैं, वही फाका शिकनी अपने घरों पे इंतजाम कर रहे हैं। ठीक, इस वक्त जो है यहाँ पर मेरठ में ये होता है कि लोग बिल्कुल मैं शबाना आपके पास आना चाहूंगा। कोलकाता में क्योंकि जुलूस की शक्ल में नहीं निकल सकते, लेकिन हमने देखा कि दूसरे शहरों में जिस तरह से फर्दन एक दो करके लोग घरों से निकल रहे हैं, क्या माहौल किस तरह का है? क्या लोग फर्दन घर से निकल रहे हैं, करबला का रुख कर रहे हैं? किस तरह का माहौल है शबाना? बिल्कुल लोग निकल रहे हैं, हालांकि टाइमिंग ऐसी कुछ नहीं है, सारे दिन यहाँ लोग आ सकते हैं। ऐसी हुकूमत की तरफ से ये छूट दी गई है कि करबला के, कोलकाता शहर में खासकर जो ये करबला है गांधी आश्रम के पास, यहाँ पर सारे दिन जो है वो लोग आ सकते हैं। तो मुख्तलिफ इलाके के ताजिया जो है यहाँ आ रहे हैं, छोटी छोटी गाड़ियों में करके आ रहे हैं, लेकिन जुलूस जो है वो नहीं निकला है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। इस पूरे इलाके के चारों तरफ जो है वो पुलिस की बड़ी तादाद, पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ तैनात है, ताकि किसी भी तरह के हालात को जो है वो कंट्रोल कर सके। और लोग भी काफी सब्र और तहम्मुल के साथ जो भी यहाँ लोग आ रहे हैं। बिल्कुल शबाना, आप नजर बनाए रखिए। जाहिर सी बात है कि यौम आशूरा का बहुत अहम एक तरह से आज रिवायत मनाई जा रही है। जहां पर पाबंदी है वहां पर भी और जहां पाबंदी नहीं है वहां पर भी महदूद तरीके में एक तरह से ये तमाम चीजें मनाई जा रही है। मैं तंजीर आपके पास आना चाहूंगा, कुछ मेहमान आपके साथ जुड़े हुए हैं जो बता रहे हैं कि इस पाबंदी के दौर में भी किस तरह से जो रिवायतें हैं यौम आशूरा की उनको किस तरह से मनाया जा रहा है।
जी बिल्कुल, मैं बात कराता हूँ जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अज़ादारान हुसैन जो सुबह से जो है तकरीबात जिस तरह की मुनक्किद होती थी वो इस बार नहीं है, लेकिन वो यहाँ करबला आए हैं और ज़ियारत की है, लेकिन बहुत तादाद कम इनकी है और गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। ग़ालिब भाई, किस तरह से आप लोग सुबह से निकले और आज आशूरे के रोज़ जिस तरह का एहतमाम होता था, ख़ासतौर पर मेरठ की हम बात करें तो बड़ी तादाद में यहाँ पे अतराफ़ के लोग भी आते थे, अज़ादारान हुसैन जुलूस में ज़ियारत करते थे, शामिल होते थे। क्या आप लोग सुबह से किस तरह से निकले और किस तरह से ज़ियारतें की? सब ने अपने घरों में सबने सुबह नमाज फजर पढ़कर सब 2-2 4-4 5-5 करके यहाँ पे अमाल, क्योंकि रोज़ा आशूरा के अमाल बहुत ज़रूरी हम लोगों के लिए और वो पूरे मुहर्रम के लिए आज का दिन बहुत हमारे लिए ख़ास है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग यहाँ 2-2 4-4 लोग आ रहे हैं, हम बने अमाल करके करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। और क्योंकि जुलूस वगैरह का इंतजाम होता नहीं, ताज़िया वगैरह बरामद नहीं हो रहे, उसका हम सबको बेहद अफसोस है, लेकिन हम क्या करें, कोविड की वजह से सब लोग मजबूर है, सरकार के हमें उसके गाइडलाइन का पालन करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है ख़ास तौर पे मातमी दस्तों ने 4-5 लोग आए और उन्होंने मातम किया अंदर अज़ा खाने में और दुआ की गई कि ये मोहलिक वबा जो है इससे निजात मिले। किस तरह से दुआ की और क्या आपने मौला की बारगाह में मांगा? कि हमने दुआ की कि मौला मुत्तक़ियान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े परवरदिगार आलम तमाम हमारे मुल्क से इस वबा को दूर कर दे और जितनी भी ये परेशानियां हम सब लोगों की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में इस परेशानी को अल्लाह दूर फरमा दे, यही दुआ हम सब की है। और शाम का क्या रहता था प्रोग्राम और अभी इस बार क्या? शाम का हमारे यहाँ पैर रखने को जगह नहीं मिलती थी, बहुत लोग आते थे, बाहर से भी लोग आते थे, लेकिन इस बार कोई बाहर के लोग नहीं है और हम लोगों ने बड़ी एहतियात बरती। हम सरकार के साथ हैं और सरकार के रूल को गाइड करेंगे हम लोग और हम चाहते हैं कि जिस तरह का सब सरकार हमसे कह रही है हम उसी तरीके से करें। कोई हमारा प्रोग्राम नहीं है शाम का और अभी भी बल्कि नमाज के बाद हम लोग ज़्यादातर अपने घरों में ही जो कुछ करना है हम घर में ही करेंगे। अब जिस तरह से यहाँ पे गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए जो मर्जा का फतवा था उस पे अमल किया, सरकारी गाइडलाइन पे अमल करते हुए इस वक्त जोहर और असर के वक्त जो है ताज़िये दफन होते थे और करबला के बाद जो है वो फाका शिकनी का एहतमाम होता था, फाका शिकन होता था क्योंकि फाका लोग रखते थे और शाम को फाका शिकनी मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में होती थी। घरों में भी लोग नजर का न्यास का एहतमाम करते थे, तो घरों में तो नजर और न्यास का एहतमाम किया जा रहा है, उसी तरह से फाका शिकनी भी उसी तरह से की जाएगी। लेकिन इमाम बारगाहों में जो इज्तिमाई तकरीबात होती थी और जिस तरह से जुलूस आते थे, अतराफ के बहुत से इलाके थे जो दही इलाके थे वहां से लोग यहाँ पर मेरठ जुलूस में शामिल होने आते थे और वो शाम को जब शाम गरीबा की जो मजलिस होती थी उसको सुन के और फिर अपने घरों को लौटते थे। लेकिन इस बार मुख्तलिफ है, पूरी तरह से जो निज़ाम है वो तब्दील है कोरोना वबा की वजह से, इसलिए शाम गरीबा की मजलिस जो है वो भी उसका भी इनेकाद नहीं होएगा और ऑनलाइन जो मजालिस हैं उसी के जरिए लोग शाम गरीबा की मजलिस में शामिल होंगे और उसको समाअत करेंगे और इसी तरह से फाका शिकनी का जो एहतमाम है वो भी घरों में हो रहा है। जिन घरों में कोलकाता का रुख करेंगे, शबाना एजाज लगातार हमारे साथ हमारी नुमाइंदा जुड़ी हुई है। शबाना, जिस तरह से जुलूस को तो निकलने की पाबंदी है, उसे इजाजत नहीं है, लेकिन घरों में जो मजालिस होती हैं, क्या वो मजालिस आज हो रही हैं, मजालिस का एहतमाम हो रहा है और मजालिस को लेकर सरकार के क्या कुछ गाइडलाइंस हैं, कितने लोग शामिल हो सकते हैं इन मजलिसों में? देखिए, मजालिस का एहतमाम हुआ, पहले मुहर्रम से लेकर अब तक जो है वो मजालिस का एहतमाम हुआ। आज सुबह भी मुख्तलिफ इमाम बाड़ों में घरों में मजालिस का एहतमाम हुआ और 25 लोग एक साथ जो है वो मजालिस में शरीक हो सकते थे, ये हुकूमत की गाइडलाइन थी, तो इस पर अमल किया गया। और साथ ही साथ हुरैरा आप देखें कि बंगाल में आइंदा कल एक दिन का मुकम्मल लॉकडाउन है, तो इसकी वजह से भी आज से ही सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है क्योंकि कल लॉकडाउन होना है। लोग ऐसे भी आज हालांकि जिस तरह से आप देखें कि आज जो है वो ऐसे भी लोगों को बाहर निकले हैं क्योंकि कल लॉकडाउन है और लोगों को अपनी जो ज़रूरी चीज़ों की ख़रीदारी करनी है। ऐसे में मुहर्रम के जो जुलूस नहीं निकले हैं लेकिन कुछ गाड़ियों में लोग जो है वो करबला की तरफ आ रहे हैं, तो इसके लिए भी पुलिस की सिक्योरिटी सख्त है और आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग जो है वो आ रहे हैं, जो है वो ताज़िया दफन कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो यहाँ से निकल जा रहे हैं। उसके बाद दूसरी जो लोग हैं वो भी यहाँ लाइन में खड़े हैं और तमाम लोगों को जो कोरोना के गाइडलाइन है उस पर अमल करते हुए पुलिस की इजाज़त के साथ ही उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है।
तो बहुत ही एहतराम के साथ और बहुत ही एहतमाम के साथ हम कह सकते हैं कि सब्र तहम्मुल के साथ यहाँ पर कोलकाता में खासकर लोग जो है वो आज यौम आशूरा मना रहे हैं, करबला का गम मना रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो शहादत पेश की थी आज उसका गम मना रहे हैं और यही कह रहे हैं कि जब तक दुनिया कायम रहेगी शहादत का ये गम जो है वो मनाया जाता रहेगा। आप देखें कि इस बार बिल्कुल जो मुहर्रम के जिस तरह के आशूरा के दिन जो जुलूस निकलते थे उस तरह के जुलूस नहीं निकले हैं, बल्कि हम कह सकते हैं कि शायद जो रिवायत थी वो रिवायत जो है वो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने घरों में, इमाम बाड़ों में मजालिस का एहतमाम किया और पाबंदी के साथ जिस तरह की गाइडलाइन दी गई थी उसमें उस तरह से लोग जो है उसमें शरीक होते रहे। ठीक है, और इस बीच मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है कि जयपुर से हमारे नुमाइंदे अरबाज भी जुड़ चुके हैं। राजस्थान में किस तरह से आज यौम आशूरा का एहतमाम किया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। अरबाज, खासतौर से जयपुर की बात करें या पूरे राजस्थान की अगर हम बात करें, क्या कुछ माहौल है आज यौम आशूरा पर? हुरैरा, जो जयपुर है इसका अपना एक अलग तारीख रही है। जो जयपुर में यौम आशूरा पर पिछले कमोवेश 250 साल से यहाँ पर जो जुलूस है ताजियों को निकाला जाता रहा है, लेकिन इस बार इसको रोका गया है, जुलूस की इजाज़त नहीं दी है पुलिस ने। जो करबला मैदान है जयपुर में जहाँ पर ताजियों को सुपुर्द खाक किया जाता है, वहाँ पर बाकायदा पुलिस ने उस लोकेशन को सील कर दिया है पूरी तरह से, और तमाम जो बड़े बाजार हैं जहाँ से जुलूस गुजरा करता था वहाँ पर भी लोगों को मुकर्रर कर दिया, बाकायदा पुलिस फोर्सेज लगा दी गई है। फिलहाल मैं पन्नीगरान इमाम बाड़े के अंदर मौजूद हूँ जहाँ से कमोवेश 250 साल से ताजिया बनता रहा है। इस बार भी लॉकडाउन में नौबत ये थी कि ताजिया नहीं बन पाएगा, लेकिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके, हालांकि जो अभरक का कारीगरी का यहाँ का मशहूर ताजिया बनता था वो नहीं बन पाया, लेकिन एक ताजिया बनाकर तैयार किया। जो अकीदतमंद हैं वो काफ़ी यहाँ पर तादाद में पहुँच रहे हैं, बाकायदा ज़ायरीन यहाँ पर ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। जो एहतियात बरते गए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मास्क लगा करके सभी लोगों को रखा गया है। जो लोग हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक यहाँ पर रस्सी बाकायदा बीच में रखी गई ताकि ताजिए के आगे कुछ नहीं आए। और जो आहता है इमाम बाड़े का, यहाँ पर महज 10 लोगों को ही अलाउ किया जा रहा है एक बार में, कि जो लोग ज़ियारत करना चाहते हैं उसमें 10 से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे और इस बार जुलूस नहीं निकलेगा, ना ही ताजिया सुपुर्द खाक किया जाएगा। फिलहाल जो ताजिएदार हैं हमारे साथ मौजूद हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम जाहिद बेग है, मोहल्ला पन्नीगरान से। तो जो है ताजिए के बारे में जैसे कि सरकार ने जो हमारे को कानून जो बताया है पालन कर रहे हैं हम लोग, और यह सब लोगों ने, बच्चों ने, बड़ों ने, सबने जो है मास्क लगा कर बैठा है। जिनको न्याज, दुरूद, शरबत, जिसको जो करना होगा, ज़ियारत करनी होगी, वो इमाम बाड़े में आकर के कर लेगा। ताजिया बाहर यहाँ से नहीं जाएगा। हम लोग 9 तारीख को सजा करके लेके जाते हैं बड़ी चौखट, और हवा महल होकर के हम हमारे मोहल्ले में ला के रखते थे, लेकिन इस बार सरकार का पालन करते हुए आज हमने इमाम चौक में रख रखा वो ताजिया, बाहर नहीं निकालेगी। जी बिल्कुल। तो अभी ये कैसे बनाया आपने लॉकडाउन में इतनी जल्दी? ये मतलब हालांकि कारीगरी उतनी माहिर नहीं है, आपने बहुत जल्दबाजी में शायद इसे बनाया हुआ, कितना वक्त लगा? नहीं तो सर, ये ताजिया तो लॉकडाउन से पहले से का बना हुआ है, क्योंकि 40 बजे के बाद काम चालू हो जाता है हमारा पूरे ताजिए का। यहाँ पे जो है 30-40 बच्चे काम करते हैं मेहनत, तो 40 बजे के बाद जो होता है वो काम चालू हो जाता है। और अभी ये बिल्कुल रेडी नहीं है, इसके अंदर शीशे लग रहे बाकी थे, वो हमने लगाए नहीं। अब कैसे, सिर्फ वैसे ही इसको सजा करके रख दिया। ऊपर से शायद आपने ये कवर कर दिया, खाली कागज़ लगा करके। सिर्फ एक इसके ऊपर वो रेशमी कपड़ा लगा करके इसको ज़ियारत के लिए तैयार करके रख दिया। जी बिल्कुल, काफ़ी तादाद में लोग आते हैं, लाखों का मजमा यहाँ जमता है जुलूस में। आप देख सकते हैं कि जयपुर के अंदर कुछ तारीखी जो ताजिए हैं ऐसे हैं जो सोने और चांदी के बने हुए हैं, कई टन वजनी, जिन्हें सिर्फ मुहर्रम की 10 तारीख के यानी यौम आशूरा को बाहर निकाला जाता है। इस बार सरकार ने उन पर भी पाबंदी लगा दी है, उन्हें अंदर रखा गया है। जयपुर जो रियासत का राज घराना है कच्छावा वंश का, उनका अपना एक अलग ताजिया, बाकायदा उन्होंने भी इस बार इस बात के लिए माजरत चाहिए कि कोरोना की वजह से हम ताजिया नहीं निकालेंगे। जो अकीदतमंद है अपने दिलों में दुआएं रखें, अपनी तमन्नाएं रखें, लेकिन जो इमाम बाड़े हैं वहाँ पर डेमोस्ट्रेशन ज़रूर रखा गया और कोशिश ये की जा रही है कि इस तरह के एहतियात बरते जाए जिससे कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा आगे नहीं फैले। लोगों को गाइडलाइंस भी दी जा रही है, एहतियात बरतने के लिए भी कहा जा रहा है। जो लोग यहाँ पर तबर्रुक लेने आ रहे हैं या मन्नतें मांगने आ रहे हैं या फिर अपने न्याज फातिहा का सामान लेकर आ रहे हैं, वो भी दूर से यहाँ पर लेकर के बाकायदा रखा जा रहा है। और लोगों को कहा जा रहा है कि इस बार करबला भी ना जाए और अपने घर के अंदर रहकर के कहीं ना कहीं जो प्रोग्राम है, जो रिवायती जलसे जुलूस होते थे, उसको एक तरह से महदूद कर दिया गया। मेरे साथ लखनऊ से तारिक कमर भी लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद तारिक
कमर, मैं आपके पास भी आऊंगा। लखनऊ में क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ चल रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक, यौम आशूरा से मुतालिक लगातार ये नशियात जारी रहे। नबी का नूर ऐन है, ये क़िबला अनाम है, हुसैन है इमाम है, इमाम है हुसैन है। या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन, क़िबला अनाम है, हुसैन है इमाम है, इमाम है हुसैन है। या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन। तो मुल्क भर में आज यौम आशूरा बड़े ही अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और रियासतों से लगातार न्यूज़ 18 उर्दू अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है कि किस तरह से आज इस दिन को अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ब्रेक के बाद सीधे हम लखनऊ का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक, जाहिर सी बात है कि आज का दिन बहुत अहम है अक़ीदतमंदों के लिए। शहीदाने करबला को खिराज अक़ीदत, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी तरह से लोग घरों में रहकर, इमाम बारगाहों में रहकर, मसाजिद में रहकर लोग शहीदाने करबला को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। लेकिन तारिक, मेरा सवाल यह है कि एक जो रिवायती तरीका होता था, जुलूस निकलते थे, मातम होता था, अलम निकलते थे, कहीं ना कहीं अक़ीदतमंदों में वो एक कसक जरूर रह जाएगी। तारिक, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, मैं लग रहा है तारिक से हमारा राब्ता टूट गया। मैं तंजीर अंसार आपके पास आना चाहूंगा। तंजीर, मेरा सवाल यह कि जिस रिवायती तरीके से यौम आशूरा मनाया जाता था, लोगों में एक गम और सोज होता था, जुलूस निकलते थे, मातम होते थे, तो कहीं ना कहीं जो अक़ीदतमंद है उनमें कसक जरूर रह जाएगी, एक कमी एक तरह से रह जाएगी। आपने सही कहा कि जिस तरह से अशराए मजालिस का इनेकाद किया जाता था और मुहर्रम का चांद नमूदार होते ही अज़ाखाने सज जाते थे, मजालिस का सिलसिला शुरू हो जाता था। लेकिन इस मरतबा मजालिस नहीं हुई हैं, इमाम बारगाहों में उस तरह से मजालिस का इनेकाद नहीं किया जा सका। कसीर तादाद में यहाँ पर सिलसिले की जो मजालिस होती थी, मेरठ में बात करूँ तो छोटी करबला में, इमाम बारगाह पंजे तनी में, दरबार हुसैनी में, और यहाँ अब्दुल्लापुर, यहाँ से 10 किलोमीटर के फासले पर जो है अब्दुल्लापुर इमाम बारगाह, वहाँ पर बहुत कसीर तादाद में जो है अक़ीदतमंद अज़ादारान हुसैन जो है जमा होते थे और मजालिस का इनेकाद किया जाता था। जुलूस जुलजना निकाला जाता था। ख़ास तौर पर 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम और 9 मुहर्रम को यहाँ पर जो है धौड़ली इलाका है, वहाँ पर कसीर तादाद में जो है शान इमाम हुसैन और अज़ादारान इमाम हुसैन और अक़ीदतमंद जो हैं वो जुलूस निकालते थे। मेरठ में जिस तरह से रिवायती अंदाज में यहाँ पर आशूर खानों में, अज़ा खानों में, इमाम बारगाहों में रिवायती अंदाज में जो तकरीबात और जुलूस और जिस तरह से मजालिस मुनक़्क़िद की जाती थी, उनका भी सिलसिला इस साल मुनक़ता हो गया। लोगों ने घरों में एहतमाम किया। आज आशूरे के रोज़ सुबह से ही मजालिस का एहतमाम किया जाता था। ख़ास तौर पर ख़वातीन की जो मजालिस होती थी वो घरों घरों में जाकर ताज़िये बढ़ाए जाते थे और नौहे पढ़े जाते थे, अलविदा के नौहे पढ़े जाते थे। और वो फिर ताज़िये जो हैं वो करबला में, जो जिस इलाके की करबला होती थी, जहां पर गढ़े होते थे, वहां पर जाकर वो ताजियों को सुपर्द खाक किया जाता था। और ये जो है रिवायती अंदाज में हर साल होता था। लेकिन इस साल ये सिलसिला भी मुनक़ता हो गया। जिनके यहाँ ताजिए जिन्होंने घर पे रखे, बहुत से लोग मन्नती ताजिए रखते थे। सिर्फ शिया ही नहीं बल्कि अहले सुन्नत हजरात में, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम जो हैं उनमें अक़ीदतमंद वो भी दूसरों के इमाम बारगाहों में या फिर जो तारीख़ी इमाम बारगाहें, वहाँ जाके एक छोटा सा ताजिया मन्नत का वो रखते थे और उसको वो 10 तारीख को बढ़ाते थे। वो जुलूस में शामिल होते थे, बाकायदा इमाम हुसैन का मातम करते थे और जुलूस में शामिल होकर करबला तक जाते थे और इस तरह से वो अपना नजराना अक़ीदत इमाम हुसैन को पेश करते थे। लेकिन इस साल जो मंजरनामा है वो बिल्कुल तब्दील है। इस वक्त हम जहाँ पर मनसबिया अरबी कॉलेज में यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर जो इंतज़ामिया कमेटी के जिम्मेदारान हैं फ़खरी साहब, किस तरह से फ़खरी भाई पिछले सालों में यहाँ पे इंतज़ामात रहते थे और इस साल क्या सिलसिला रहा है, आपने क्या इंतज़ामात किए, क्योंकि सबसे बड़ी करबला है मेरठ? देखिए, करबला का आशूर का यहाँ कोई प्रोग्राम करबला का अपना नहीं होता है।
छोटी करबला से जुलूस बरामद होता है ताज़िए का, मुख्तलिफ जगहों के जो शहर के ताज़िए हैं वो वहाँ इकट्ठा होते हैं और एक बड़े जुलूस की शक्ल में वो अपनी जो उनकी मखसूस शाहराह है कि घंटाघर के चौराहे तक आया और यहाँ रेलवे रोड चौराहे से इधर ईदगाह रोड से होता हुआ इस वाले गेट से यहाँ जुलूस दाखिल होता है और ताज़िए यहाँ दफन होते हैं। तो क्योंकि आका सिस्तानी का भी हुक्म उधर से आया कि गवर्नमेंट को फॉलो करें और गवर्नमेंट की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह की कहीं से भी कोई परमिशन ताज़ियों से मुताल्लिक नहीं है कि जुलूस बरामद हो। तो जब छोटी करबला से जुलूस बरामद नहीं होगा तो यहाँ आएगा नहीं, ताज़िए नहीं आएंगे तो तदफीन का कोई मामला नहीं है। वो उसी हवाले से क्योंकि जुलूस आता था उसी हवाले से यहाँ तमाम मोमिनीन होते थे, हर फिरके के लोग जमा हो जाते थे, सब एक भीड़ का वो माहौल होता था। तो हमने तो ये बिल्कुल एहतियातन लोग भी अब इस चीज को समझ रहे हैं कि कोरोना का खतरा सामने है, इस वजह से जो गाइडलाइन सरकार ने दी है उस पर मुकम्मल अमल किया जाए और ये चीज एक तरह से पूरे मुल्क में देखने को मिल रही है। मैं लखनऊ का रुख करूंगा, तारिक कमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक, मेरा सवाल इससे पहले भी आपसे यही था कि खिराज अकीदत तो शहीदान करबला को घर में बैठकर भी लोग एक तरह से बारगाहों में, मसाजिद में, घरों में रहकर भी खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, लेकिन जो एक रिवायती तरीका होता था उसकी कसक कहीं ना कहीं लोगों के मन में जरूर होगी। बहुत अहम सवाल है, देखिए, और ये सवाल इसलिए अहम है कि करबला को अगर आप समझिए रूहानी एतबार से और उसका जो दूसरा पहलू है जो कि हमारे कदीम रिवायतों से जुड़ा हुआ, तो देखिए जो अमाल का सिलसिला है वो तो ना कभी बंद हुआ है ना हो सकता है, क्योंकि वो आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं और अपनी मखसूस अज़ाखानों में कर सकते हैं, बारगाहों में कर सकते हैं। तो वो जो एक अमाल का सिलसिला है जो इबादत के ज़ुमरे में आता है वो तो आप करते ही रहेंगे। लेकिन देखिए जो एक हमारी रिवायतें हैं वो बड़ी रोशन रिवायतें हैं, उनके बड़े तहजीबी मकासिद हैं, तहजीबी हवाले हैं, उस हवाले से एक पूरी तारीख़ सफ़र करती है, उस हवाले से एक पूरे मसलक के जो एक मामूलात है वो सफ़र करती हैं। तो देखिए उस पर कहीं ना कहीं ज़रब ज़रूर लगी है और जाहिर है कि ये जो ज़रब लगी है ये कोरोना के सबब लगी है। एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं उन तमाम तर अहकामात को जो अदालत ने दिए हैं, उन तमाम तर हिदायत को जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई हैं, उन तमाम तर दरख्वास्तों को जो उलमाए किराम की जानिब से की जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात आपने अभी हुर्रा की कि देखिए ये जो एक दूसरा पहलू है जो हमारे कदीम तहजीबी रवैयों से जुड़ा हुआ है, हमारी कदीम तहजीबी रिवायतों से, मजहबी रिवायतों से जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं इस मर्तबा हमें उसका फुकदान नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि वो लोग जो सियाह लिबास में हुसैनी आज़ादार निकलते थे, कुमा लगाते हुए निकलते थे, जंजीरी मातम करते हुए निकलते थे, नोहा खानी होती थी, सोच खानी होती थी, एक बड़े से बड़े जुलूस की शक्ल में निकलते थे लोग, अपने अपने तौर पर ख़वातीन बड़ी तादाद में नंगे पैर करबला का रुख करती थी। तो वो सड़कें, वो गलियाँ, वो रास्ते, वो चौराहे जिन पर कभी आज़ादार सफ़र करते थे आज पुलिस का पहरा है, पुलिस की गाड़ियाँ गश्त कर रही हैं। तो ये अपने आप में बहुत इबरतनाक मंजरनामा है, बहुत अफसोसनाक मंजरनामा है और इस पर बहुत संजीदा गौर व खोज कई हवालों से करने की ज़रूरत है। बिलाशुबा अदालत का हुक्म हमको मानना है, हर एतबार में हर लिहाज से अदालत के हुक्म की पाबंदी करनी है, उन तमाम तर हिदायत की मानना है जो हुकूमत की जानिब से दी जा रही है। ताहम कहीं ना कहीं हुरैरा ये कसक, ये चुबन, ये इस्तराब, ये बेचैनी, ये बेकरारी हम देख रहे हैं उन चेहरों पर जो आज़ादारों के चेहरे हैं, उन मातमदारों पर जिनके सीने पे मातम के निशान चमक ना मना पाना, ये जाहिर सी बात है लोगों में और अकीदतमंदों में एक कसक इसकी जरूर कहीं ना कहीं है जो निकल कर एक तरह से सामने भी आ रही है। मैं सीधे कोलकाता का रुख करूंगा, शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी नुमाइंदा। शबाना, क्या सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई उसमें क्या इस बात को भी वाजे किया गया कि 2-2, 4-4 लोग जो हैं वो करबला जा सकते हैं, फर्दन करबला जाया जा सकता है, उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है? बिल्कुल, आज लोगों को राहत इस बात की ज़रूर मिली है कि वो घर में बैठकर, घरों में बैठकर, इमाम बाड़ों में बैठकर सरकारी गाइडलाइन के साथ शहदान करबला को याद तो कर रहे हैं, लेकिन जो रिवायती अंदाज से जिस तरह से आशूरा के दिन मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है वो नहीं निकाल पाए, लेकिन फिर भी करबला आने की इन्हें इजाज़त मिली है। हमारे साथ है कुछ लोग, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को आज आशूरा का दिन किस तरह से मना रहे हैं, जुलूस नहीं निकाल पाए, कोरोना बहरान के पेश नज़र आज लोग करबला आने की इजाज़त मिली? नहीं, ऐसा है कि ये पूरा मुहर्रम ही हम लोगों के लिए बड़ा तकलीफ, मुहर्रम क्यों कहूँ, ये पूरा साल बहुत तकलीफ दे था। 2020 का साल ही पता नहीं कैसा था और ये कोरोना ने आकर के ज़िंदगियों को बहुत ख़राब किया, ज़िंदगी का हर शोबा उससे मुतासर हुआ। उसमें हमारी मजलिसें भी हैं, आज़ादारी भी है,
और हम लोगों ने लेकिन ये किया कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को मेंटेन करेंगे। तो हम लोगों ने बहुत सारी मजलिसों को मनसूख करके ऑनलाइन मजलिसें कराई ताकि लोग अपने घरों में बैठ करके मजलिसें सुन सकें। लेकिन कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं जो जब तक हम लोग कहीं पर जमा ना हो हम वो नहीं कर पाते, जैसे जंजीर का मातम है, जैसे हाथ का मातम है, तन्हा नहीं होता, कई लोग मिल करके करते हैं। तो वो भी हम लोगों ने जो हो, ये मैं कहूँगा कि हुकूमत की बहुत बड़ी हम लोगों के साथ ताउन रहा कि उसने जहाँ जहाँ पर हमको रिलैक्स दे सकते थे वहाँ दिया। हमारे 7, 8, 9 के जुलूस रवायती तौर पर तो नहीं निकले, लेकिन अलामती तौर पर जैसे 5 तारीख को उन्होंने कहा कि आप एक 50 कदम तक निकाल करके फिर वापस बढ़ा दीजिए, मैंने वैसे ही किया। 6 तारीख को अंदर ही रहा। आज करबला भी आने की इजाज़त? आज करबला आने के लिए उन्होंने स्पेशल इजाज़त ये दी कि जुलूस नहीं निकलेंगे, लेकिन जो जुलूस निकलने वाले हैं वो लोग अपने जुलूसों को गाड़ी पर रख करके करबला तक आएँ और यहाँ पर आकर के प्रोसेशन की शक्ल 2-4 लोग अंदर जाएं और जाकर के उसको बढ़ा सकें। तो मैं गवर्नमेंट का भी इसके लिए शुक्रगुजार हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट का भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कम से कम हमको इमाम का गम मनाने का मौका दिया। करबला का गम है और इसके साथ साथ जिस तरह से कोरोना का बहरान है, तो क्या दुआएं मांगी आप? देखिए, करबला से बढ़ करके हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये हमारी ज़िंदगी है, हमारी शरह हयात है। मगर अफसोस इसी बात का कि इस वबा की वजह का जिस तरह से हमें गम मनाना चाहिए, जो हक है गम मनाने का, उससे हम इस वबा की वजह कर गम नहीं मना सके। मगर फिर भी इंसानियत के नाते और जो भी हमारे हुकूमत मगरबी बंगाल ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने जो भी हमारे सहूलियात मुहैया की हैं वो हमारे लिए बहुत बेहतर हुआ। हम लोग इसी के ऊपर इक्तफा किया और हम लोग हुकूमत से किसी तरह का कोई टकराव भी नहीं चाहा। जो हम लोगों के साथ जिस तरीके से में जिस तरह से जुलूस निकलते हैं, कोरोना बहरान की वजह से नहीं निकल पाया, लेकिन गैर मुस्लिम भी इस जुलूस में शामिल होते हैं, अकीदत के साथ जो है वो खड़े रहते हैं, तो आज उनको भी कहीं ना कहीं मायूसी। बिल्कुल, ये कुछ लोगों ने तो जो करीब में होते हैं, इमाम बारगाह के करीब हैं या बहुत से लोग जानते हैं, वो उन्होंने वहाँ चले गए, वहाँ ज़ियारत कर ली, वो शरीक हो गए। मगर ख़ास तौर पे ये जो हम लोग पूरे कैनिंग स्ट्रीट से यहाँ तक आते हैं और आम जो मजमा होता है, लाखों लाख का मजमा, उसमें हमारे मुसलमान भाई भी होते हैं, गैर मुस्लिम भी होते हैं, बंगाली भी होते हैं, सभी होते हैं, उनको भी मायूसी हुई, वो भी इस ज़ियारत से महरूम हुए। मरसिया खानी जो है वो भी दूर दूर तक उसकी गूंज सुनाई देती है, लोगों के आंखों से आंसू निकलते हैं। तो आज आप लोगों ने किस तरह से? जी, जिस तरह से हम लोग जिस तरीके से पढ़ते हैं उसी तरीके से हम गाड़ी पे आए हैं, मगर गाड़ी के अंदर भी हम नवाह खानी करते हुए आए, मातम करते हुए आए, और जिस तरीके से करते थे उसी तरीके से की अलामती तौर पे, मगर हर साल की तरह उस साल नहीं हो पाया, इसका हम लोगों को गम है। मगर फिर भी ये अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार हम लोगों की इस अकीदत को कबूल कर ले और इस नज़ारे का मौला हुसैन कबूल कर लें। कहना चाह रहे थे आपने, जिस तरह से आपने कहा कि हुकूमत ने जो है वो काफ़ी, असल में देखिए ये सोशल डिस्टेंसिंग से जहाँ नुकसान हुआ, लेकिन हमारे यहाँ घर घर अज़ा हुई है। ये हर घर में कम से कम 10, 15, 20 लोग जमा हो जाते थे और उन्होंने घर घर अज़ा किए। मैं समझता हूँ कि अगर कलकत्ते में 50 मजलिस होती थी तो इस साल 50,000 मजलिस हुई होगी कम से कम। तो ये इमाम का गम है, किसी को रोके नहीं रुके। खासकर मैं कह रहा था जुलूस में उन लोगों को बड़ी मायूसी हुई जो हमारा जुलूस आता था कॉलेज से बहू बाजार से होता हुआ, तो वहाँ बहुत सारी वो हिंदू औरतें जिनको इसी इमाम से औलाद मिली होती है या इससे मांगने आते हैं, वो अपनी मन्नत बढ़ाने आते हैं। उन्हें मैंने तो किसी तरह से गम बना लिया, उन्हें बड़ी मायूसी हुई कि वो आज इमाम हुसैन के दुल्हन को मरीदा नहीं खिला सके, उसके पैर पे दूध नहीं डाल सके। ऐसे बहुत सारे लोगों के करते हुए आए। जी, हम लोग रास्ते में नवा खानी करते हुए आए, सड़क पे नहीं है, गाड़ी में हम लोगों ने किया है, गाड़ी पे करते हुए देखें कि किस तरह से लोग गम मना रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और साथ ही साथ वो हुकूमत का शुक्रगुजार भी हैं हुकूमत के कि उन्हें करबला आने की इजाज़त दी गई है। और ख़ासकर जिस तरह से उन्होंने मजालिस का एहतमाम किया है तमाम तर हुकूमत के गाइडलाइन के मुताबिक, उसी तरह से
वो कोलकाता में खासकर करबला में आकर लोग जो है वो अपनी जो जिस तरह से वो आखिरी हम कह सकते हैं आशूरा के दिन जो खास होता है कि करबला में आना, उन्हें यहाँ आने की इजाज़त मिली है और लोग मुख्तलिफ इलाके के लोग टाइमिंग का लिहाज करते हुए वो यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल, इतने मुश्किल हालात में भी सरकार और इंतजामिया ने कुछ दरमियाना रास्ता निकालने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो अकीदतमंद है वो भी आज सरकार का शुक्रिया और इंतजामिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं अरबाज आपके पास आना चाहूंगा। अरबाज, जयपुर की खासतौर से अगर हम बात करें या इसके अलावा राजस्थान में अजमेर की अगर हम बात करें, अजमेर में किस तरह से आज के इस दिन को मनाया जा रहा है? क्या वहां पर भी इसी तरह से पाबंदियां हैं? जी बिल्कुल, ये जो तमाम पाबंदियां हैं पूरे राजस्थान में आयद की गई हैं और जो हालात हैं, क्योंकि जयपुर और अजमेर दोनों की अपनी एक अलग तारीख रही है। योम आशूरा पर यहाँ जो लोगों के जज्बात देखने को मिलते हैं वो तारीखी होते हैं। पूरे हिंदुस्तान भर से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग जयपुर योम आशूरा पर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ का नज़ारा क्या होता है, क्योंकि जयपुर के अंदर हज़ारों लाखों का मजमा सड़कों पर होता है। यहाँ पर कमोबेश 450 से लेकर के 500 जो है छोटे और बड़े ताज़िए बनाए जाते हैं। जो ताज़िएदार यहाँ पर मोहल्ले हैं कमोबेश 100 से ज़्यादा, वो मोहल्ले अपने अपने जो ताज़िए हैं वो योम आशूरा के अगले दिन से बनाना शुरू कर देते हैं। जो हालात होते हैं, जो तमाम चीज़ें होती हैं, वो बड़ा एक अलग मंजर होता है। अजमेर में इस बार जिस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्ती की है उसके मुताबिक जो चंद मोहल्ले हैं वहाँ पर जहाँ पर पुरानी तारीखी अगर देखा जाए कि रही है कि जिस हिसाब से जो पहले ताज़िए बनाए जाते रहे वहीं पर इजाज़त दी गई है, उन्होंने ताज़िए बनाए और डेमो किया है ठीक वैसे जैसे यहाँ पर किया जा रहा है। इसको ना तो उठाने की इजाज़त है ना इमाम बारगाह से बाहर लाने की इजाज़त है। इमाम बारगाह के बाहर हज़ारों सैकड़ों लोगों का मजमा है, काफ़ी जो नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, तमाम लोग यहाँ का रुख कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि वो जो उनके अपने ख़ुद के अगर देखा जाए कि जज्बात हैं वो यहाँ पर आकर के पूरी तरह से शेयर करें। जो अकीदत हैं, जो मन्नतें हैं, तमाम चीज़ें लेकर के आ रहे हैं और कोशिश यही है कि हर साल की तरह, क्योंकि देखिए अबू हुरैरा जयपुर के अंदर अगर देखा जाए जो कम्युनिटी है शिया, जिसके हिसाब से कि वो महज 4 से 5 हज़ार उनकी तादाद होगी, लेकिन लोगों के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद इतना है कि 4 से 5 लाख लोग इस जुलूस में शामिल होते हैं। तो वो बिना किसी तफरीक के सिर्फ एक ही इस यकीन के साथ में आगे होते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को लेकर के एक सबक लिया जाए, तमाम लोग उसमें शरीक हों और आपस में कोशिश ये करें कि जो शहादत उस वक्त हुई थी उससे सबक लें। एक नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। जयपुर में मौसम जो है बाकायदा बहुत तेज़ बारिश का है, यहाँ पर चारों तरफ बारिश का दौर सुबह से लगातार जारी है। उसके बावजूद लोगों को हटाना पड़ रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। एक यहाँ पर रस्सी लगा दी है बाकायदा। कोशिश यही है कि तमाम लोगों को समझाया जाए कि ये जो फिलहाल हालात हैं इसमें कुर्बानी हमें थोड़ी बहुत अपने जज्बातों की देनी होगी और कोशिश ये करना होगा कि इस वबा से लड़ने के लिए मुत्तहिद होकर के एक साथ सामने आए और कोशिश ये करें कि जो दुआएं हैं, जो अपनी इबादतें हैं, वो सारी चीज़ें इस हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से जाहिर सी बात है कि यौम आशूरा ये पूरा मुहर्रम का जो महीना ही है ये अकीदत से जुड़ा हुआ है और आज का दिन जो है ये बहुत अहम है। इस वजह से लोग कहीं ना कहीं अपनी अकीदत और उनके अंदर जो जोश व वलवला है उस पर एक तरह से काबू नहीं रख पा रहे हैं। जहां पर पाबंदी नहीं है वहां पर तो लोग मना ही रहे हैं, लेकिन जहां पर पाबंदी है लोग अपने घरों में रहकर आज़ा खानों में या इमाम बारगाहों में लोग किसी न किसी तरह से शहीदाने करबला को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शबाना आपका भी शुक्रिया और अरबाज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू पर लगातार यौम आशूरा की नशियात जारी रहेंगी। छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं। मशरक़ैन है ये अर्श एहतिशाम है, नबी का नूर ऐन है ये क़िबला अनाम है, हुसैन है इमाम है, इमाम है हुसैन है। क़िबला अनाम है, हुसैन है इमाम है, इमाम है हुसैन है। उधर जम्मू कश्मीर के बडगाम में यौम आशूरा का जुलूस निकाला गया। आशूरा का ये जुलूस जामिया बाबुल अलीम मीरगुंड से निकाला गया। जुलूस में हजारों अफराद ने शिरकत की और वाक़े करबला को और शहादत हुसैन को याद करते हुए अपने गम का इजहार किया। लोगों ने इस बात का एतराफ़ भी किया कि हक की राह में इस अजीम कुर्बानी से रहती दुनिया तक हमें जालिमों के सामने डट जाने और हक के लिए अपनी जानें कुर्बान करने का सबक
और हौसला मिलता रहेगा। ये हक़ बातिल जो मार्का हुआ था आज से तकरीबन 1400 साल से पहले, तो ये एक वाज़ेह पैगाम है कि बातिल के पास कितनी भी क़ुव्वत हो, कितना भी साजो सामान हो, लेकिन जो हक़ पर है अगर उसके पास मुट्ठी भर, जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ 72 नफूस थे, अगर उनके पास पक्का ईमान हो, खुदा का खौफ हो, तो बातिल उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह हमेशा हक़ की जीत होती है, चाहे उनकी तादाद कम ही क्यों ना हो। तो ये उनका वाज़ेह पैगाम है और हकीकी पैगाम है। वहीं कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से श्रीनगर गुलशन बाग से जरीबल होकर निकलने वाला जुलूस भी इस बार बरामद नहीं होगा। श्रीनगर के इमाम बाड़े से हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक ने। यौम आशूरा ये मुहर्रम दिल में होता है, बाहर जाने से या उधर इधर जाने से तो मुहर्रम का मुकाम काम नहीं होता है, ये दिल में होना चाहिए। जिस तरह रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन खाक बरसर होते हैं, इसी तरह हम शिया भी होते, सारे मुसलमान ये उम्मती होते हैं। ये कोविड-19 है तो ये पूरा दुनिया में कहर है, घरों में ही, सब ने घरों में ही किया, क्योंकि हम किसी के मातहत हैं, वो भी किसी के मातहत है। हमें ईरान से फतवा आता है, जो आयतुल्ला हमें उसने बोला घर में जितने आदमी हो, 5 बंदे हो, 6 बंदे हो, घर में करो, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। यौम आशूरा की मुनासबत से मलाबूचन मागाम से जुलूस बरामद हुआ। जुलूस की खासियत यह है कि सरकारी गाइडलाइन के तहत समाजी फासला रखा गया और अज़ादारों ने मास्क पहने हुए शहीदान करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। मागाम में जुलूस का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। इस वक्त हम मौजूद है बड़गाम के मागाम में हैं और यहाँ मलबुछन से यहाँ पे एक आशूरा का जुलूस बरामद हुआ है और इस वक्त ये अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे अगर ख़ास बात इस जुलूस की करेंगे और यहाँ पे बाज़ाबिता तौर पे जो सरकार की गाइडलाइंस है, यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का ख़ास ख्याल रखा गया है और हर एक आज़ादार ने यहाँ अपने मुँह पे मास्क पहने हुए हैं। यहाँ पे हमारे एक आज़ादार है जी, आप बताइए आज यौम आशूर है, क्या पैगाम है, किस तरह आप सरकार की गाइडलाइंस पे अमल कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार की जो भी गाइडलाइंस है हम उनको पूरी तरह से फॉलो करते हैं। रहा दूसरा सवाल, ये करबला हक़ और बातिल की लड़ाई है। हम लोगों को यही पैगाम देना चाहते हैं, हक़ पर डटे रहना चाहिए, बातिल का कभी साथ नहीं देना चाहिए। यही करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया है। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी गाइडलाइंस है आप देख सकते हैं, खुद हर एक अज़ादार ने मास्क लगाई है, सोशल डिस्टेंस रखी है, वाटर बोतल डिस्पोजेबल रखी है, पूरी गाइडलाइंस हम फॉलो कर रहे हैं। ये इमाम हुसैन की याद ताज़ा कर रहे हैं। जुलूस जो है ये एक मिसाली जुलूस है और यहाँ सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखा गया है और यहाँ पे मास्क पहने हुए हैं और हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की याद को ताज़ा किया जा रहा है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, मागाम। तो पूरे मुल्क में आज पूरे अक़ीदत व एहतराम के साथ यौम आशूरा मनाया जा रहा है और न्यूज़ 18 आप तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ रियासतों से लगातार नशियात यौम आशूरा की पहुंचा रहा है। सीधे इस वक्त हम झारखंड के रांची का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम राज तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा बेंगलुरु से एक बार फिर से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं नौशाद आपके पास ही आना चाहूंगा। रांची की खास तौर से अगर हम बात करें तो रांची में जाफरिया मस्जिद से लेकर करबला तक के रास्ते की अगर हम बात करें, बहुत तारीखी मंजर होता है खास तौर से यौम आशूरा पर। इस बार मंजर क्या कुछ है? देखिए हुरैरा, पूरे झारखंड में, रांची समेत पूरे झारखंड में यौम आशूरा के मौके पे काफ़ी तुज़्के एहतशाम के साथ जो है ना जुलूस बरामद होता है। लेकिन इस बार चूँकि हुकूमत के अहकामात कोरोना की वजह से जो जारी किए गए हैं उसका जो है ना ख़ास ख्याल रख रहे हैं। तमाम जो है शिया और तबके से हो, चाहे वो सुन्नी तबके से हो, तमाम जो है ना लोग इस बार जो है ना मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाल रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे मस्जिद जाफरिया के इमाम हैं जो सैयद तहज़ीबुल हसन रिज़वी साहब। ये हम जानना चाहेंगे इनसे कि इस बार जो है जो मातमी जुलूस का एहतमाम होता है रिवायती तौर पे हर साल, इस बार जो है न किस तरह का जो है वो मंजर देखने को मिल रहा है। मौलाना, इस बार चूँकि लॉकडाउन है, कोरोना का वबा जो है न काफ़ी कहर जो है न झारखंड में भी वो जारी है यहाँ पे मुसलसल,
हुकूमत के भी इस ताल्लुक़ से अहकामात जो है जारी किए गए हैं और ख़ास जो है ख्याल रखा जा रहा है। इस बार जो है पिछले बार के मुकाबले में मुहर्रमुल हराम में जो है क्या कुछ तब्दीलियाँ जो है आप लोग जो है किया है, क्योंकि पिछली बार जो है जो रिवायती तौर पे यहाँ पे जो जुलूस का एहतमाम करते हैं वो मातमी जुलूस होता है, दुहा खानी होती है, जंजीरी मातम होता है, लेकिन इस बार जो है आप उसका बिल्कुल जो है एहतमाम नहीं हो रहा। और क्या क्या हो रहा, आज़ादारी वगैरह कर रहे हैं, उसका एहतमाम, मजालिस का एहतमाम तो आप लोग यकुम जो है मुहर्रम से ही जो है जारी रखा है, तो इस बार क्या कुछ कर रहे हैं? मुहर्रमुल हराम 1442 हिजरी, ये इतिहास और तारीख़ में लिखा जाएगा कि पूरी दुनिया में या हुसैन की फ़िज़ाओं से रोज़ आशूर के दिन हर गलियां, हर इलाके, हर रोड, हर चौराहे गूंज जाया करते थे। मगर इस साल वो हालात नहीं हैं, चूँकि कोरोना वबा की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, कानून की पाबंदी की वजह से, सरकार की गाइडलाइन का हम लोगों ने भरपूर तामुन किया है, इसलिए कि इमाम हुसैन की कुर्बानियाँ इंसानियत को बचाने की खातिर थी। कोरोना से इंसानों को बचाना है, मुल्क को बचाना है, इसी वजह से हम लोगों ने इस मरतबा सारे प्रोग्राम तकरीबन ज़्यादातर लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस के साथ ऑनलाइन प्रोग्राम किया गया। आज भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह नौशाद भाई हमारे कि आप हमेशा आते रहे हैं और ETV और आपका 18 हमेशा नशर करता रहा है। तारीख़ी प्रोग्राम होता था रांची में, ये वक्त हमारा जुलूस लेकर निकलने था, मगर हम सब बहुत अफसोस में, गम में है कि जो इमाम हुसैन का गम मनाना चाहिए था, जो हिस्सा था हम वो नहीं कर पाए हैं। दिलों में बड़ी तड़प है, बड़ी बेचैनी है, मगर एक तरफ इंसानियत को भी देखना है, एक तरफ अकीदत को भी देखना है। लिहाजा अकीदत के तहत हम ज़िला प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी हमसे ये कहा 6-7 आदमी ले जाकर के। नौशाद, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से रिवायती तरीके से जुलूस नहीं निकल पा रहे हैं तो अकीदतमंदों में एक मायूसी जाहिर सी बात है। मैं इस वक्त मेरे साथ हैदराबाद से अनीसुर रहमान भी हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन इस वक्त हम बेंगलुरु का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे रऊफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रऊफ, बेंगलुरु शहर के अलावा अगर पूरे कर्नाटक की हम बात करें, क्या कुछ खबरें पूरे कर्नाटक से यौम आशूरा के मुतालिक मिल पा रही हैं? जी देखिए, रियासत कर्नाटक में जैसा कि सुबह मैंने कहा कि कहीं भी जो है जो मुहर्रम का, यौम आशूरा का जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी गई है। सिर्फ मजलिसें हो रही हैं, आज़ादारी हो रही है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को याद किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि मस्जिद अस्करी बेंगलुरु का जो शिया मुसलमानों का मरकज़ है, यहाँ का एक मंज़र आप इस वक्त आप दिखा रहे हैं कि बिल्कुल मुख्तलिफ मंज़र है। एक ऐसा मंज़र है जो शायद ही कभी यौम आशूरा के मौके पर इस तरह का मंज़र दिखाई दिया होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज़ादार जो है आ रहे हैं, एक बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और समाजी फासला, मास्क, ये तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए यहाँ पर मजलिसें भी हो रही हैं, वक्फे पर मजलिसें हो रही हैं और मुख्तसर तौर पर मातम की इजाज़त दी गई है। इस वक्त अंजुमन इमामिया के सदर मीर अली रज़ा नजफी हमारे साथ मौजूद हैं। नजफी साहब बताइए, ज़ोहर की नमाज अदा हो चुकी है, हमेशा जो है नमाज ज़ोहर के बाद जुलूस निकलता था, लेकिन इस मरतबा खामोशी देखने को मिल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जुलूस के अलावा जितने भी मजालिस हमारे पास हर वक्त हर रोज़ होते थे बेंगलोर कर्नाटक के अंदर, पूरे मजालिस को सोशल डिस्टेंस रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक ने हमको इजाज़त दी है और बिलखुसूस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और कॉरपोरेशन जो बेंगलोर का है, ये दोनों के तरफ से सोशल डिस्टेंस रखते हुए सब सर्टन गाइडलाइंस के तहत हम लोग पूरे कर्नाटक में बिलखुसूस बेंगलोर में जो मजालिस होते थे हर वक्त मजालिस पूरे हो रहे हैं, इसमें कहीं भी कोई कमी नहीं है। मातम की इजाज़त दी गई है? मातम हम करेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंस के साथ। जो भी हमारे पास आशुखाने हैं, मसाजिद हैं, उसके अंदर सोशल डिस्टेंस रखकर हम मातम बराबर कर रहे हैं। इसमें देखा गया तो जो दूसरी जगह इजाज़त नहीं मिली है, उसके बावजूद भी हम कर्नाटक गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं, बिलखुसूस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स और महकमे दाखिली जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ये दोनों
की तरफ से हमारा कोऑपरेशन अच्छा रहा है। काफ़ी वसी पैमाने पर यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। बेंगलुरु की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो जुलूस निकलता था पूरे शहर से, शहर के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते थे और ईरान के तलबा जो मुकीम हैं बेंगलुरु में, ईरान, इराक और भी जो दीगर ममालिक के जो तलबा हैं, यहाँ तक कि बैरून रियासत यानी कि उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ के लोग जो बेंगलुरु में रहते हैं वो सभी इकट्ठा हुआ करते थे। हज़ारों की तादाद में लोग जुलूस में हिस्सा लिया करते थे। लेकिन आज का जो ठीक है रऊफ, हम दोबारा से आएंगे। नजफी साहब को आप रोक कर रखिए, हम दोबारा से आएंगे क्योंकि सीधे हम हैदराबाद का रुख करेंगे। अनीसुर रहमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनीसुर रहमान, आपने कहा था कि 1 बजे हैदराबाद का जो तारीखी बीबी का अलम का जो जुलूस निकलता था वो 1 बजे निकलेगा। 1 बज चुका है, क्या तैयारियां शुरू हो गई और क्या वो जुलूस निकलना शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल अबू, बीबी का अलम अलावा बीबी से निकल चुका है। मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि इस बार हाथी पर नहीं है जुलूस, बिल्कुल एक 4 व्हीलर पर उसका इंतज़ाम किया गया है। वो बहुत ही तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। चार मीनार जो तकरीबन 2 घंटे बाद चार मीनार पर हुआ करता था अलम, इस बार सिर्फ आधे घंटे में वो चार मीनार से होता हुआ जो आशुर खाना खद्म रसूल वहाँ पर पहुँच चुका है। इंतज़ार है लोगों को यहाँ पर। मैं एक बात बताता चलूँ कि शुमाली हिंद के कंपैरिजन में हैदराबाद में आशुर खानों पर जो है यहाँ पर प्रोग्राम्स करने की इजाज़त दी गई है। तो लोग यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं बैतुल खैम है, यहाँ पर अभी यहाँ पर आज़ादारी का सिलसिला जो है वो थोड़ा ख़त्म हुआ है, वक्फा दिया गया है। लोग बाहर आकर इंतज़ार कर रहे हैं आलम मुबारक का जो है दीदार करने के लिए। आप देख सकते हैं लोग काफ़ी बड़ी तादाद में आशुर खानों से निकल कर अभी जो है यहाँ पर जो रास्ता है, यहाँ पर रिवायती रास्ता जो पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ गुजरता है, इंतज़ार में हैं लोग दीदार के लिए। यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। अबू बिल्कुल अनीस, आपके पीछे मैं देख पा रहा हूँ कि बड़ी तादाद है लोगों की। ये लोग जुलूस देखने के लिए, जुलूस की जियारत करने के लिए आए या फिर जुलूस में शामिल हैं? देखिए अबू, कल ही शिया उलमा और जितने भी लीडर्स हैं उन लोगों ने कहा था कि यहाँ पर जो अहकाम दिए गए हैं वो उसकी मुकम्मल पैरवी करेंगे। ये जुलूस में शिरकत के लिए नहीं आए हैं बल्कि यहाँ पर दीदार के लिए आए हैं, क्योंकि ये जो पुराने शहर का इलाका है यहाँ पर पूरी सड़क के दोनों जानिब छोटे बड़े आशुर खाने हैं। वहाँ पर आज़ादारी का सिलसिला सुबह से ही चल रहा है। लोग आज़ादारी में हिस्सा लेने के लिए आए हैं चूँकि इजाज़त दी गई है आज़ादारी की, और लोग जो है अभी यहाँ पर ज़ियारत के लिए यहाँ पर ठहरे हुए हैं। जी अबू बिल्कुल अनीस, एक चीज़ जो लोग इसमें शामिल हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि अब जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं वो कोरोना की वजह से लगाई जा रही है जुलूस पर, लेकिन जो लोग शामिल हैं आपके पीछे जो मैं जिस तरह से देख पा रहा हूं तो बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिनके चेहरों पर या फेस पर मास्क नहीं है, यानी पूरी तरह से लोग कहीं ना कहीं गाइडलाइन पर अमल नहीं कर रहे हैं। जी अबू, हालांकि कोशिश की गई है गुज़िश्ता कई दिनों से कि इस बार जो भी जुलूस होगा वो थोड़े रेस्ट्रिक्शंस के साथ होगा। उलमा और रेडियो टेलीविज़न, उलमा टेलीविज़न और दूसरे जो वसाइल हैं सोशल मीडिया, उसके ज़रिए समझाने में लगे हुए थे कि इस तरह इस साल जो मुहर्रम होगा, जो आज़ादारी होगी वो ख़तरे मुख्तलिफ होगा। तो फिर भी कहीं ना कहीं चूँकि जज्बात का सवाल है, लोग सड़कों पर निकल आए हुए हैं और यही कहा जा सकता है कि चूँकि बहुत जल्दी में ख़त्म हो रहा है तो ये सिलसिला जो है आज बहुत कम वक्त में ख़त्म हो जाएगा। जी अबू बिल्कुल अनीस, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं दोबारा से आपके पास आऊँगा। इस वक्त सीधे हम भोपाल का रुख करेंगे। मेहताब आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ रास तौर पर जुड़े हुए हैं। मेहताब, क्योंकि पिछले बार से इस बार बहुत कुछ बदला हुआ है, खासतौर से भोपाल और मध्य प्रदेश की बात करें, सरकार की तरफ से पाबंदी है। सवाल ये उठता है कि रिवायती तरीके से जो यौम आशूरा मनाया जाता था या जो रिवायतें होती थी, जिस तरह से इस पर अमल किया जाता था, इस बार क्योंकि अलग हटकर किया जा रहा है, क्या कुछ अलहदा है? कितना फर्क आप देख पा रहे हैं गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में इस बार? हुरैरा, हम बताते हैं कि भोपाल के करबला ग्राउंड पे खड़े, आप हमारे पीछे देख रहे कि लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं।
सख्त सिक्योरिटी इंतजाम जो किए गए हैं, वहाँ पर तमाम चीज़ें लॉकडाउन है और सख्त सिक्योरिटी इंतजाम आज पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन है। तो उसके बीच में जो है तमाम लोग जो है यहाँ पर करबला के जो शहीद है उनको याद कर रहे हैं, उनका मातम यहाँ पर जारी। आप देख रहे हैं यहाँ पे पुलिस भी है, सिक्योरिटी भी है, लोग मातम कर रहे हैं क्योंकि बारिश भी भोपाल में हो रही है। चारों तरफ जो है लोग जो है उन तमाम पाबंदियों के बीच में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहीदा करबला का जो पैगाम है उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश इसलिए है कि जो शहीदान करबला का जो पैगाम है उस पैगाम जो दुनिया के गोशे में यहाँ पे पहुँचाया जा सके। जो लगा रहे हैं इसे सुनवा दिया जाए। यहाँ पर हुरैरा जो है हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनको हम चाहेंगे। आज आप लोग पाबंदियों के बीच में जो है मना रहे हैं, किस तरह से जो है? इस्लाम जो है डिसिप्लिन और सारे लोगों की मदद करने के लिए पैगाम देता है। यहाँ भोपाल में भी इसी को मानते हुए पूरी तरह डिसिप्लिन में और जो सरकार ने कदम उठाए हैं हम लोगों की सुरक्षा के लिए उसको ही मानते हुए सब लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे इंतज़ाम के साथ में अपने एतक़ाद के साथ में अपने घरों में ज़्यादातर लोगों ने मुहर्रम को मनाया है। और जो पैगाम दिया गया था शहादत में कि डिसिप्लिन और अच्छी इंसानियत के लिए, उसको यहाँ भोपाल में बहुत अच्छे से लोगों ने मनाया है। पुलिस और प्रशासन जिस तरह से मुस्तैदी से यहाँ काम कर रही है, मिसाल है उसकी कायम के बहुत अच्छे से यहाँ पे पूरा कायम किया जा रहा है। यकीन तौर पर हम बताएं फिर भोपाल में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में, क्योंकि संडे का दिन जो है लॉकडाउन का दिन है, तो पुलिस की जो सिक्योरिटी है, पुलिस का जो इंतजाम है और जो इसके साथ साथ जो है लॉकडाउन की पाबंदियों के साथ साथ जो है लोगों को जो मास्क लगाना जरूरी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे खड़े हैं, मास्क के साथ लोग जो है इस शहीद करबला के शहीदों के गम में शामिल है और वो पैगाम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं जो 1400 साल पहले करबला के मैदान से दिया गया था। हुरैरा बिल्कुल जाहिर सी बात है, अकीदत से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और लोग किसी न किसी तरीके से खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं करबला के शहीदों को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जो रुफ़क़ा जो करबला में शहीद हुए थे। मैं रऊफ मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से अभी आप मेहमानों से बात कर रहे थे, कुछ लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा किया, इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। मेरा सवाल रऊफ ये कि क्या जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसमें किसी तरह की छूट भी दी गई है कि चंद लोग 2-4 लोग करबला जा सकते हैं और जो पूरा अमल है यौम आशूरा का जो रिवायत है वो उसे एक तरह से मनाया जाए? जी देखिए, जहाँ तक आज का जुलूस का सवाल है वो बस यही बात यहाँ पर कही गई है कि जुलूस न निकालें। हाँ, अलबत्ता जो अलम है उसे उन्हीं इलाकों में शहीद किया जाए। यहाँ पर एक मंजर मैं देख रहा हूँ कि मस्जिद अस्करी में जो अलम जो जुलूस में सबसे आगे हुआ करता था वो आज मस्जिद के अंदर सिर्फ एक रिवायती तौर पर उसे खड़ा कर दिया गया है। और आप ये देख रहे हैं कि एक बड़े पैमाने पर इस जुलूस में ताज़िये निकाले जाते थे, अलम होते थे और तरह तरह के जो है घोड़े जो करबला से की निशानदेही करते हैं, वाक़े करबला, शोहदाए करबला के निशानदेही करते हैं, ऐसे अलम और ताज़िये निकाले जाते थे। लेकिन आज जो है इस तरह की इजाज़त यहाँ पर नहीं दी गई है। और जो अलम पाक हैं, सर बताइए, अलम पाक आज जो है कहाँ पर आप शहीद करेंगे इन्हें, कैसे ये करबला जाएंगे, कैसा? हमारे पास सिर्फ 10-12 लोग जाने की इजाज़त है। 10-12 लोग जाके कब्रिस्तान में हम लोग उसको ठंडा कर देंगे अलम। बिल्कुल भी 10 से 12 लोगों की इजाज़त दी गई है। और आपने जैसा कहा कि हुकूमत से जो है ताउन मिल रहा है यहाँ पर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखा गया तो जितना बेंगलोर और कर्नाटक के लोग ऑर्गेनाइज हैं, उनका राबिता गवर्नमेंट से अच्छे तरीके से होने की वजह से और गवर्नमेंट हमारा कॉन्फिडेंस लेकर और हम गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंस में पूरे कर्नाटक के हर ज़िले के अंदर अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आज भी अच्छे तरीके से पूरे। आखिर में क्या पैगाम आप दे रहे हैं? आज का जो दिन है, जो शहादत हुई 1400 साल कबल नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, मैं एक ही पैगाम बिलखुसूस हिंदुस्तान के सारे जो अहले बैत अलैहिस्सलाम को चाहने वाले, बिलखुसूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मातम करने वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ
जो गवर्नमेंट रूल्स फ्रेम करी है उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। और आपको मालूम होना चाहिए कि आगा शीस्तानी ने एक फतवा दिया है, वो फतवा ये है कि कोई इन्फेक्टेड आदमी अगर ऐसे मजमे में आ गया और दूसरों को अगर इन्फेक्शन हुआ तो वो जिम्मेदार होगा, उसकी जिम्मेदारी इन्हें कहीं ना कहीं मुसीबत में बहरहाल यहाँ पर जो इंतजामात यौम आशूरा के मौके पर ये जो मुकाम है अबू हुरैरा, ये इस तरह का मुकाम हुआ करता है कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। आज देखिए यहाँ पर आप जो है आज़ादार मजलिस के लिए दाखिल हो रहे हैं। इस वक्त जो है मजलिस का आगाज होगा, मजलिसें होंगी, मजलिसों के लिए किसी तरह की पाबंदी नहीं है। समाजी दोबारा से आपके पास दोबारा से आएंगे। जाहिर सी बात है कि पूरे अकीदत और एहतराम के साथ पूरे मुल्क में यौम आशूरा मनाया जा रहा है। जहां पर पाबंदी है वहां पर भी और जहां बंदिशें नहीं हैं वहां पर भी जो अकीदतमंद हैं वो शहीदान करबला को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन लगातार न्यूज़ 18 उर्दू पर हमारी कवरेज जारी रहेगी। शाह मशरक़ैन है ये अर्श एहतशाम है, नबी का नूर ऐन है ये क़िबला अनाम है, हुसैन है इमाम है, इमाम है हुसैन है। या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या एहतशाम है, नबी का नूर ऐन है ये क़िबला अनाम है, हुसैन है इमाम है, इमाम है हुसैन है। हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन। और अब आइए एक नजर डालते हैं यौम आशूरा की अहमियत व फजीलत पर। इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रमुल हराम का 10वां दिन यौम आशूरा कहलाता है। यौम आशूरा यानी मुहर्रम की 10वीं तारीख के सिलसिले में मोरिखीन लिखते हैं कि इस दिन बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं। आइए एक नज़र डालते हैं यौम आशूरा की तारीखी अहमियत पर। यौम आशूरा की तारीखी अहमियत। यौम आशूरा में ही आसमान और ज़मीन, कलम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसी दिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। इसी दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर लंगर अंदाज हुई। इसी दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब मिला। इसी दिन हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहाई और मिस्र की हुकूमत मिली। इसी दिन बनी इसराइल को फिरौन से निजात मिली। इसी दिन हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को सख्त बीमारी से शिफा नसीब हुई। इसी दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर निकाले गए। इसी दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के शर से निजात मिली। इसी दिन हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को मैदान करबला में शहीद किया गया। आप सोच सकते हैं कि ये दिन इस्लामी तारीख में कितनी अहमियत रखता है। यौम आशूरा के मौके पर पूरी दुनिया में हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को याद किया जाता है और उनके नक्श कदम पर चलने का अहद किया जाता है। शहादत हुसैन अलामत है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने और डट जाने की, सच को सच कहने की जुर्रत की अलामत और हक बात के लिए जान की कुर्बानी पेश करने की हिम्मत और हौसले की अलामत। हजरत हुसैन से प्यार करने वालों के लिए फिर एक मौका फराहम हुआ है कि वो हक की तरफ अपनी जानें लड़ा दें और ये साबित कर दें कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अकीदत रखने वाले हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में सिर्फ आंसू बहाना ही नहीं जानते, बल्कि हक और आज़ादी की खातिर उनके उसवा पर चलने और गर्दनें कटाने का हौसला भी रखते हैं। और ये हकीकत है कि जो कौम जान देने के लिए तैयार होती है, बाइज्जत जिंदगी का हक उससे कोई नहीं छीन सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 उर्दू पर यौम आशूरा से मुतालिक नशियात का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आदाब।
عین ہے یہ عرش احتشام ہے، نبی کا نور عین ہے یہ قبلہ انام ہے، حسین ہے امام ہے، امام ہے حسین